को शुरू करके हम सभी कार्यक्रमों का बिना किसी चिंता फिक्र के ठीक से उठा सके। तो इस कार्यक्रम में जो हमारे बीच कहानी पढ़ने वाले लेखक हैं, बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी, कश्मीरी, उड़िया और तेलुगु भाषा से, उन सभी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर। श्री राम कुमार मुखोपाध्याय जी, श्रीमती सुधा वर्मा जी, श्री अखिल प्रताप जी, श्री गौरी शंकर रैना जी, श्रीमती नीति सामंत जी, श्री वेमपल्ली गंगाधर जी, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आ जाएं। तो हम कहानी पाठ की शुरुआत करते हैं। और चूंकि ऐसे तो यह कार्यक्रम बहुभाषी है, लेकिन हम चाहेंगे कि जैसी सूचना दी गई है हमारे लेखकों को कि वे अपनी कहानियों का पाठ या तो हिंदी जो जिनका मूल है वो तो हिंदी में पढ़ेंगे, जिनका अंग्रेजी है वो अंग्रेजी में पढ़ेंगे, लेकिन अन्य भाषाओं के लेखकों से अनुरोध होगा कि वे अपनी कहानी का हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो हमारा श्रोता समुदाय है वो उसके लिए सहूलियत होगी कहानी को सुनना, उसका आनंद उठा पाना। तो शुरुआत करते हैं हम इसकी। और सबसे पहले बांग्ला भाषा से, जिस क्रम में नाम कार्ड में छपे हुए हैं उसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले राम कुमार मुखोपाध्याय जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कहानी पाठ के लिए। आपके 9 उपन्यास, 9 कहानी संग्रह, 2 यात्रा वृत्तांत और अनेक संकलन पुस्तकें प्रकाशित हैं। अनेक भाषाओं में आपकी रचनाओं के अनुवाद हुए हैं। अनेक पुरस्कार प्राप्त हैं, जिनमें आनंद पुरस्कार बांग्ला का एक बहुत बंगाल का बहुत बड़ा पुरस्कार है, भाषा परिषद पुरस्कार, कथा पुरस्कार इंटरनेशनल और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी आप विभूषित हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि राम कुमार मुखोपाध्याय जी अपनी कहानी का Professor Mamta Kaliaji is yet to come here. Srimati Shubha Sharma, Akhil Pratap, Gauri Shankar Raina, P.T. Samanto, Empolli Gangadhar, Sri Malpati Bhattacharya and others. Thanks. Hours. So I have spoken in my story. Not only a short story, but now it is a shorter story. एक इधर भी लगानी पहले वाला ना बहुत पहले वाला नेक्स्ट The title of the story is Dove or the Man. A dove nestled in the branch of the dry tree was crying ceaselessly. The sun was almost up in the sky. The salty, vaporous air was gradually winning away. The 5-color sari of Suchat's wife was tossing in that wind. She was in quest of her husband, who seemed to have disappeared since the early morning. 3 days before, Suchat and his wife had gone to Anara for some job.
they got to know from others about a pond digging work there, but they did not get any work. No slips and block development office was signed. So with the money available, 50 workers could be given work at best. Those who had went early were able to get work. Suchad and his wife were returning home in the scorching heat of the sun, carrying spade and basket with them. On the way back home, they happened to they happened to find some rotten brinjals on some field, looking around here and there. His wife collected some and kept them in her sari fold. 3 days back, Shuchat had managed to get a fruity is a fruity, which they had swallowed with their utmost satisfaction. Since then, they had had nothing to eat. On that morning, Shuchat had quarreled with his wife and left home. He said he would never come back. He would die. Death was more inviting than living such a life. And as the sun touched the top of the polar stream, so Shotu's mother went to the pond. The water level in the embankment was at the bottom. No sooner had the sun risen than the place baked in an oven-like heat. She got a handful of oysters. While cleaning them, she fumed out. It was not anger, it was fire. Some 3 years back, Suchard had left home incensed. He had got back home limping at noon. Some people had been on their way back to Anara, having brought rice, pearls, etc. from Purulia town. Suchard was caught red-handed when stealing the goods. He was severely beaten. Left with nothing, Suchard came back home and pounced on his wife in anger and was about to beat her. Unable to bear this, his wife walked out of home, shivering in the December cold. She remained on an empty stomach throughout the day. The Luther Company dug out the pond of the Marwaris for a good supply of water. The new slush on all the four sides of the bank helped in growing plenty of pumpkins and their leaves. The people were away in town for business, but they had security men for keeping a watch over the pond. Promptly, Suchar's wife picked up 3 odd pumpkins, wrapped them in her petticoat, and walked back into her room. Suchar, enamored of his wife, spent the night in utter ecstasy. Suchar was not bad as such. When he was hungry, he lost all his senses. He was proficient in wickedness. An unknown fear engulfed Suchar's wife. As time passed by, she, she got restless. It was time for her to inquire whether Suchar was in the vicinity or had gone somewhere else. With, with rambling thoughts in her mind, Shoku's mother drew close to the village square. She developed blisters on her feet. Red soil, red flame, and red sari were blazing in heat. People jostled against each other to collect water fast. Rabon had had no urination since the night before, no water left for cleaning. Within his stack of clothes, a quarrel started between Sotu's mother and Hassan. She left her bucket into the well to fetch water. The water level had gone down. She bent down. A bucket full of water could be lost if one was not careful. Sotu's mother felt a sudden alarm. The hot, cemented mouth of the well
raised her. She fell down. Immediately, Hasani took away the rope and tied it with hers. She placed a bucket full of dirty water for Shotu's mother. And do you Shotu's mother sat on a courtyard and looking at the undulating and empty lands lying before her. Gradually, the sun sank. The evening approached. Darkness deepened. Time passed by. At a distance, people were crossing the aisle with the fields with cheering sound. On that day, there was a village fair. Folks walked across the fields towards their home, beating the madul. So, they were coming, and they were frequently singing some Hindi songs. The night advanced, the heat went down. Shotu's mother sat unperturbed. Cricket produced sounds. Some two or three drops made the ground. Shotu's mother head bent on her knees. Perhaps Shotu is hanging from a wire for long. He was adamant and can do anything. The year before, Vinod had quarreled with his wife and committed suicide by hanging from an electric wire. Once Suchant too swallowed Dhotura seeds. Luckily, he had a narrow escape as darkness deepened. Shotu's mother got entangled in her thoughts. Dhotura seeds, rope, train line, and electric wire, all of them is tossed in her mind. There was a full moon after 4 days. The moon was up in the sky. The effulgence of the moonbeams flooded the plains. Suddenly, a palm tree nearby arrested Shotu's mother's attention. She had a vision of someone coming from the village path. The person came closer. Now she recognized him, but she remained unmoved. She sat in the same stone-like way. Suchat came closer to the wooden seat. He pushed the door and entered. After a while, he walked out. Again entered. After some time, he came out and lifted his wife, who was sitting in a bent posture. She was in stupor and was as still as a doll. Then she regained lifelike sensation. She flung her hands out, scratched with her nails, and beat. Suchat sat in the courtyard. He poured off two bowlfuls of water. Suchat said that he could have committed suicide. He said, I was climbing up the Sauntalvi post quickly. High tensile line. Sauntalvi post high tensile electric line. It was almost my reach. A paper container was on the wires. He continued. As soon as a pair of doves sat on the paper containers, they were electrocuted and gone. Right, sir. God has given us things of food. Why should I commit suicide? Moreover, you are also going without food. The cooking pot was put on the burning oven. Now cooking started. Some rice was collected from a neighbor's house. They prepared dove's meat. Having finished eating, they came outside the house. The milk-white moonbeams spread the splendor everywhere. People from all the surrounding areas were still going to the village fair. Suchat now walked across the field and reaches the outer part of the village. He managed a bottle of liquor free of cost. Sitting on the bank of the pond, he consumed it. Again, he started walking on the village path close to his wife, singing a song. I quote, the reaped gold mixes with the bitter gold. Oh my God, mixed together. You feel ashamed, don't you? You gave me a chuckle. Oh my God, you gave me a chuckle. Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार दा को। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती सुभा शर्मा जी को। आप लेडी श्रीराम कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रमुख छात्र हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल है। आपकी प्रकाशित कृतियों में फ्लाई ऑन द वॉल एंड अदर स्टोरीज और अवस्थित और आम नगरी उपन्यास शामिल है। श्रीमती शुभा शर्मा जी अपनी धन्यवाद। मंच पर आसीन सभी सम्मानित लेखक एवं लेखिका गण और आज यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरी कहानी समय से अधिक होगी इसलिए मैं पूरी कहानी नहीं पढ़ूंगी। इसके मुख्य मुख्य अंश पढ़ लूंगी जिससे कि आपको एक अंदाजा लग सके कि कहानी क्या है। कहानी का नाम है द बूढ़। बूढ़ उड़िया शब्द है जो कि डुबकी, पानी में गोता या डुबकी लगाने को कहा जाता है। She had finally made it. The sunlight reflected off the waves and silently lauded her efforts, like millions of trophies beckoning at the end of her race. And what a long race it had been. Indeed, when Panchai Nani left her village last evening, the sun was a little red ball, ready to climb behind the bed covers of fluffy white clouds. And when she set foot on the beach opposite Swargadwar in Puri, it was shining in its full glory, akin to the Sunabeso of Lord Jagannath that she had seen with her husband. Panchai sat down on the warm sand and let her idle mind take her back to that day, some 50 springs ago. How handsome her husband had looked in his dhoti and gamcha. And she, a quiet bride of barely 16, was excited about her first visit as a married woman to Sri Kendra. Her mother-in-law's words rung in her ears. Put your head down and walk behind your husband. Be careful not to loosen in the crowd. When you reach the temple of Mahalakshmi, pray for the prosperity of the house and draw a lotus flower on the floor. Trembling with excitement, she was careful to follow all these instructions and triumphantly returned to relate her achievements to Bo. But she should have known better. Bo found that she had not remembered to observe the Neela Chakra mounted on the top of the Jagannath temple while performing the parikrama, and had castigated her for days on end. How she missed Bo! Bo would have told her that she was doing the right thing, that no sacrifice was too great for your family. A piercing whistle sharply jerked her back to the present. A youth wearing a life jacket with a stick in one hand and a whistle around his neck was patrolling the sea waters. Every now and then he would blow his whistle and hit the waves with his stick, emitting a loud splash to ensure that all the pilgrims on the beach were aware of his presence. On the way to Puri, in the bus, she had heard that the Sarkar had appointed lifeguards from amongst the local Nadiyas. The whole bus was talking about the arrangements for Govinda Dwadasi Pura. It was said that by bathing in the sea on this auspicious day, one could earn punya equivalent to that earned by performing 14 Ashwamedh Yagyas. The last such boor occurred in 1965, and this time 10 lakh people were expected to bathe at the beach. Panchai heard on the bus that Sarkar was making elaborate arrangements. With elections barely a month away, all efforts were on to ensure that the Dwadasi was accident-free. The Nadiyas were like the proverbial Lakshman Rekha that the unwary tourist would have to cross before he could reach the sea. Panchai Nani cursed the Nadiyas and the Sarkar under her breath. Why should they go out of their way to prevent people from taking a Jal Samadhi? She herself had come to Puri with the goal of attaining moksha in Shriketu and earning some punya for the future of her little grandson Vishnu. Her eyes watered as the chubby image of Vishnu came. Sweet, innocent Vishnu, always doing well in his class, loved by his teachers, but unable to have anything
but hand-me-down clothes and toys because his father never had enough money. Panche knew that her son was a good, hard-working boy. But how much could one earn as a priest in a sahi full of priests? Whatever little he earned was spent on a family of Panche, his wife Saraswati, and 3 children. Over the last few months, as the 3 children started going to school, the household budget was ready to burst at the seams. Saraswati's dalma became more watery, and the portions of bhat diminished. Once or twice she caught Saraswati muttering about old people not knowing how to move on to the other world. The mutterings grew louder after Radha Mausi disappeared. While Radha's daughter-in-law Veena claimed that she had joined a mutt at Puri, not many believed her. The silence of Radha's son only strengthened rumors that she was driven away from her daughter-in-law by her daughter-in-law. Saraswati's mutterings increased. Initially, Panchai Nani pretended not to hear them, but slowly, like a woodpecker hammering at the tree trunk, the words transformed themselves into accusations and pervaded her mind and soul. On those days when she went to bed after eating barely anything, she dreamed that she was a prisoner, being led in thick chains before the Lord. The visage of Sri Lord Jagannath, always so loving and compassionate, darkened with anger and his eyes widened in fury. She was a burden on her son and his family, a parasite who was sucking their lifeblood that would nourish them and most importantly nourish Vishnu. She would fall on her knees before Mahaprabhu and beg for mercy. He would then soften and show her the way. At this point, Panchai Nani would wake up sweating with fear. In the last week, she repeatedly saw this dream and could no longer derive any solace from sleep. Slowly, an idea took root in her mind. Yes, that was the way Mahaprabhu had shown. With each passing day, her resolve strengthened. Why? The timing was so good that it might have been preordained. After 25 years, Govinda Dwadasi Mahabhur was taking place, and Panchai Nani would make the biggest offering to the Lord. She would take Jal Samadhi to reduce her loved one's misery and to gain the punya for Vishnu. Till now, Panchai Nani's plan worked fine. She interpreted this as a sign from the Lord. Yesterday, she took 20 rupees from Saraswati for her bus fare to Puri. Saraswati said something about extravagant widows who cared nothing for their starving grandchildren. Till then, Panchai had resolved not to mention her plan to anyone. In a secret corner of her heart, unknown even to her conscious self, she wanted her son to worry, for him to reproach Saraswati, and for the entire Sahi to gossip about her absence and blame Saraswati for driving out her mother-in-law. Her rational self reasoned that if she told anyone, they would stop her. With these thoughts churning her mind, she decided to be cautious. Some people say that a dip in the sea during the Buddha will get me punya. I thought I would go and see the Buddha. Oh, so in your old age you want to earn punya? Maybe you think the Lord will open the gates of heaven for you. Saraswati dripped sarcasm. Maybe. A lot of people don't return from the sea. She had not meant to say it. It just slipped out. Her voice became low, and yet seemed to fill up the entire room. There was something undefinable in the air. Saraswati looked up fearfully. And was it actually hope shining in her eyes? She stared at Panchai Nani's face for a long time, trying to gauge if she was right in reading the extra meaning in her words. Then she got up with a jerk, opened her trunk of old clothes, rummaged inside, and came back with 2 dirty 10 rupee notes folded several times. Vishnu's father gave this for his school bag. Her words sounded a warning, like the Saptapada, the seventh circumambulation of the wedding ceremony that said there would be no turning back now. Don't worry, the money will not be wasted. Panchai Nani's eyes made a solemn promise to Saraswati, even though her words were innocuous. Panchai Nani left the house, the Sahi, and the village soon after. She wanted to leave before the children came back from school, not trusting her resolve once she saw them. The journey till now had been uneventful, but she was tired and now wanted the whole thing to end as soon as possible. Taking the Lord's name, she slowly staggered to her feet and walked towards the inviting coolness of the sea. Slowly,
The waves lapped at her ankles as if tasting her. They appeared to like her because as she continued walking, they started nibbling at her body like hundreds of cold tongues. The water now rose up to her torso, and the waves were pushing and pulling her into their depths. Panchai Nani closed her eyes and allowed herself the luxury of imagining Vishnu's laughing face one last time. Then she plunged ahead. As her head went underwater, the sudden roar of the waves, along with all the sounds of the world she was leaving behind, ceased. She wanted to struggle and breathe, but the waves were lifting her like a feather. She felt so light. All her weight was taken by someone else. Oh Lord, you have come to take me. His strong hands were pulling at her arms. Panchai Nani was ecstatic. She had succeeded in her Jal Samani. I pause here. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच सुभा शर्मा जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अखिल प्रताप जी को। आप पुरस्कृत फिल्म निर्माता, स्तंभकार, कॉपीराइटर, लेखक, साहित्यकार तथा एक सेवा अधिकारी हैं। आप रक्षा मंत्रालय में सोशल मीडिया सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय के ड्यूटी मेंबर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में टीवी उद्घोषक और रेडियो कथावाचक के रूप में कार्यरत हैं। द सोल्जर एंड द स्टोरी टेलर कहलाने वाले मेजर अखिल आना एंटरटेनमेंट नाम से मीडिया फंड भी चलाते हैं। श्री अखिल प्रताप। At the onset, may I express my gratitude to Science Academy to have invited me in this office company. This is a multilingual short story reading, and पंजाबी तो मैंने आती नहीं, एक भी बांग्ला बोलते पारी, but मुझे हिंदी में कहानी के लिए मैं यहाँ पर हूँ। और प्रीफेस के तौर पे बताना चाहूँगा कि ये जो कहानी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये 3 साल पहले फेस्टिवल ऑफ लेटर्स में इसी जगह इसी दिन रिलीज हुई थी। वैसे 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है, और कहानी में भी वही होगा। जैसे मेरे परिवार के 3 सदस्य यहाँ पर हैं। अब चूंकि पोइट्री मीट भी साहित्य अकेडमी में हो रही है, तो पोइट्री से शुरू करते हैं कि होली से मेरे हाथ है रंगीन, और मेरी कहानी का नाम है 3। Start with a story, please. ये कहानी वैसे पेरेंट्स के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। 3 रोज पहले स्कूल से बुलावा आया, ईस्टर की छुट्टियों से 3 रोज पहले। क्लास में कदम रखा तो तुम्हारी महक फैल गई, जैसे उस रोज तुम्हारे हाथों से वो सादा फूल गिर पड़ा था। क्लास में कदम रखते हुए तुम्हारा सादा दुपट्टा उसके हिस्सों को समेटने में किवाड़ से उलझकर चिर गया था। वो किवाड़ अब भी चमड़ाता है। उस बेंच पर अब भी उतनी ही धूल जमी पड़ी है जैसे हमारे रिश्ते में। मैं सफा करके बैठ गया। पास की खाली सीट कुछ नहीं बोली, मैं चाहती थी मुझे शायद। क्लास का जायजा लिया तो हर चेहरा अजनबी था, मेरी बेटी का छोड़। वो वैसे ही घबराई सकुचाई बैठी थी, मुझे पकड़कर जैसे तुम उस दिन आफ्टर क्लास बैठी थी। मैंने मुस्कुराकर उसे थपथपाया तो वो और सिमट गई। इन टीचरों का डर तुम्हारी तरह कभी दिल से नहीं जाता। वे झालरें अपनी जगह खो चुकी हैं, खिड़की खुलती नहीं है क्लासों में आजकल, न पंखे होते। सोचता हूँ इन वातानुकूलित कक्षाओं में बच्चे पनपते कैसे होंगे। क्या कोई पौधा बंद कमरे में पेड़ बन सकता है? शायद नहीं। उन्हीं खिड़कियों की जवानी में और पंखे की रवानी में मैंने काफी पन्ने चुराए थे तुम्हारी केमिस्ट्री की किताब से। केमिस्ट्री तभी शुरू हुई थी हमारी। सुकून देती थी केमिस्ट्री, खिड़कियां और पंखे। बेटी की केमिस्ट्री टीचर से मिलने आया हूँ, मेरी बेटी भी केमिस्ट्री में फेल हो गई। स्कूल में मेज और तराजे भी प्लास्टिक की होती हैं इन दिनों, जैसे इंसान।
बच्चे तो आईना होते हैं, जो देखते हैं वो फेंकते हैं। उनकी क्या गलती है अगर वे भी प्लास्टिक होकर रह जाए? याद है तुमको उन लकड़ी की मेजों पे हम जो तबले बजाया करते थे अंताक्षरी खेलते वक्त? इस काल के बच्चे वो ताल नहीं पूजेंगे। कौन सा था वो मेरा वाला गाना जो मैं तुमको देख के अमूमन गुनगुनाया करता था? हंसे तो दो गालों में भंवर पड़ा करते थे, जहां तेरे पैरों की कवल पड़ा करते थे। हाँ, यही गाना था, छोड़ आए हम वो गलियां। कितने कुछ 15 साल 15 साल के रहे होंगे हम जब कलकत्ते के पैराडाइज सिनेमा घर में माचिस फिल्म देखी थी। 21 रुपए के टिकट थे रियर स्टॉल के। 20 दाएं कान का रास्ता लिए दिल में ऐसी हरारत पैदा करती थी जैसे कश्मीर के पैराडाइज में कहवा मिला दिया गया। प्लीज अब ये याद मत दिलाना कि कैसे घर आकर पापा ने मेरा रियर सुझा दिया था उस रियर स्टॉल की बदौलत। मैं इतिहास में शायद पहला बच्चा रहा होगा जो खुद 4 दिन क्लास में खड़ा रहा, टीचर कारण पूछती रही और अनारकली हंसती रही। क्या तुम्हारी हंसी अब भी वैसी है? पता है अब अपने स्कूल के काफी चोचले हो चले हैं। कैंटीन, स्विमिंग पूल, वाटर डिस्पेंसर, फलाना फलाना, जिम्नेशियम जैसे मॉल ने मंडियों का स्थान ले लिया। अपना सा नहीं लगता, अपना सा नहीं लगता। वैसे अपना जैसे तुम्हारा टिफिन खा के लगता था, जैसे बारिश में फुटबॉल ग्राउंड की कीचड़ में हम छपाके लगाते थे, जैसे हम चुल्लू में पानी बांटते थे, वैसा जैसे उस पेड़ के तले बैठकर हम अपनी दुनिया बनाते थे। मेरी बेटी ने वो पेड़ नहीं देखा जिस पर तुम्हारा नाम खोदा था मैंने। उस पेड़ को काटकर जिम बनाया गया। आते वक्त मिस हुसैन टकरा गई, वो हमारी प्यारी स्पोर्ट्स टीचर, जिनके पीरियड में हम पीटी की बजाय पीपी किया करते थे, टाइम पास। उनकी क्लास में कितने घरौंदे बनाए थे मिट्टी के, कितनी मिट्टी डाली एक दूसरे पर। छोड़ो, मिट्टी डालो इन बातों में। जो भी हो, क्या पास होता था हमारा टाइम, कैसे हमारा टाइम पास हो गया पता ही नहीं चला। 21 साल हो गए मेरे उन 21 रुपए के टिकट की तरह। मिस्टर टोपो की टोपी और मशहूर गांधीवादी ऐनक अब गुजरने के कगार पर है, बिल्कुल उनकी तरह। अरे वही अपने कंप्यूटर्स वाले सर, कंप्यूटर उस जमाने में नए नए आए थे, याद है ना? मैं गणित वाले 3 के बजाय हार्ट वाला 3 बनाता था तुम्हें रिझाने के इरादे से, और टोपो के टोकते ही अधूरा रह जाता था हार्ट शेप, जैसे अपन रह गए। निकलते निकलते मिस्टर फर्नांडिस भी मिले, अपने कुर्राट क्लास टीचर। रुमाल उठवाकर अब भी वैसे ही बेत लगाते हैं मोटू से। लेकिन देखता हूं कि आजकल के माँ बाप इस दर्जे का अनुशासन बर्दाश्त नहीं कर पाते और शिकायत दर्ज करा देते, जिसकी बुनियाद पर टीचर्स को वार्न कर दिया जाता है, आगाह कर दिया जाता है। कुछ तो अपने बच्चों का स्कूल ही बदलवा देते हैं। पता नहीं मेरा क्यों बदला गया। वैसे मेरी बेटी मेरे स्कूल में ही पढ़ेगी। केमिस्ट्री में फेल हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। वो केमिस्ट्री चाहे विषय वाली हो या दिल वाली, केमिस्ट्री में फेल हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। तुम्हारे सफेद रुमाल पर लाल रंग से सिर्फ 3 शब्द ही तो लिख भेजे थे मैंने। सफेद लाल से तो शाखा पौला भी बनता है, पर उस लाल रंग में मेरे लहू से ज्यादा उन्हें अपना गुस्सा दिखा था। क्या उन्हें उन 3 अल्फाज में मेरे आई और तुम्हारे यू के बीच लव नहीं दिखा? उस रोज यही हुआ था पापा के साथ। 3 रोज पहले स्कूल से बुलावा आया, ईस्टर की छुट्टियों से 3 रोज तक। मैं मेजर अभिषेक प्रताप, भारतीय सेना का एक पुराना सैनिक।
बहुत धन्यवाद अखिल प्रताप जी को। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कश्मीरी भाषा के लेखक, अनुवादक और फिल्म निर्माता श्री गौरी शंकर रैना जी को। आपकी 2 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित है, कई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का आपने निर्माण किया है, जिनमें महात्मा, द ग्रेट सोल और द गोल्डन आर्ट प्रमुख है। और आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें दूरदर्शन का पुरस्कार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पुरस्कार, लोक सेवा प्रसारण पुरस्कार आदि शामिल है। श्री गौरी शंकर रैना जी, आपकी कहानी के साथ। मंच पे आसीन सभी सम्मानित लेखक, सभागार में विद्वान लेखक और मेरे मित्र, मैं आज अपनी एक कहानी जो टर्न पेश करूँगा। ये मैंने मूल रूप से कश्मीरी में लिखी थी, लेकिन मैं इसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करता हूँ यहाँ पर। यो टर्न, इसका शीर्षक झील की ओर उतरती पत्थर की सीढ़ियां एक बड़े दलदली क्षेत्र की ओर ले जाती थी। वे मकान जो झील के किनारे बने थे, कीचड़ में खड़े अपने होने को प्रयास थे। खाली हाउसबोट मटमैले दृढ़ पर अजनबी से मिले। ये क्या था? क्या ये आने वाले दिनों की तस्वीर? वह किनारे पर खड़ा ये कैसा दृश्य देख रहा था? उसने एल्स्टर झील देखी थी, एल्बे नदी देखी थी, ब्रुकलिन ब्रिज से झिलमिलाता हुआ पानी देखा था, किंतु ये क्या था? उसने कई देशों की यात्रा की थी, कई महत्वपूर्ण योजनाएं निर्धारित की थी। वो जहां भी जाता वहां उसको सुनने के लिए बुद्धिजीवियों, शोधकर्ताओं, प्रबंधकों व व्यवस्थापकों की भीड़ रहती। सुर्खरू चेहरा, लंबी नाक, छरहरा शरीर, सिर के बाल सफेद होने लगे थे। मगर प्रोफेसर अब्दुल रशीद भट्ट में अभी भी वो फुर्ती और आकर्षण था जो अमर सिंह कॉलेज में लेक्चरर होते समय होता था। उन दिनों सारा भी वुमेन्स कॉलेज में लेक्चरर थी। जमाना गुजर गया, प्रोफेसर इसी साल रिटायर हुआ। वक्त जैसे हथेलियों से फिसलता हुआ उड़ जाता। कार फुटपाथ के पास खड़ी थी। ड्राइवर पाइप का तंबाकू खरीदने सामने के बाजार में गया था। जनाब, एक पैकेट लाया हूँ, सुहेल ने तंबाकू का बंडल थमाते हुए कहा। रशीद ने ढल से नजरें हटाई बिना उतर। फुटपाथ पर इक्का दुक्का पर्यटक आ रहे थे। ड्राइवर ने पैकेट खोलकर पाइप में तंबाकू डाला। प्रोफेसर ने पाइप सुलगाया और लंबे लंबे कश खींचते हुए सामने अपलक देखता रहा। वो कहीं भी जाता, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सिंपोजियम में भाग लेने जाता, लेकिन वापस आकर इसी झील के किनारे छप छप करती हुई पानी की लहरों को ओर से टकराते हुए देखता। झील के पीछे खड़ी अनुपम पहाड़ियों के घुमाव देखता, पानी के ऊपर उड़ते धूसर बादल देखता, दूर जबरवन से आते हुए पक्षियों को देखता। कितना अलग था ये सब, अलौकिक। यूरोप, अमेरिका, जापान, कहीं भी उसे ऐसा कुछ देखने को नहीं। वह कल ही हैम्बर्ग से आया है, जहां उसने ग्रोथ वर्सेस एनवायरनमेंट विषय पर व्याख्यान दिया था। विश्वविद्यालय के नए परिसर के सभागार में बोलते हुए उसने कहा था कि आदमी की लोलुपता और हाल के उग्र तापमान व मौसम के बदलाव के कारण आने वाले दिनों में तबाही हो सकती है। पिछले 100 वर्षों में विश्व की अर्थव्यवस्था 7 गुना बढ़ी है, मगर विश्व ने अपने आधे ट्रॉपिकल वन खो दिए। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने लगी हैं क्योंकि व्यवसाय करने वाले और नीतियां बनाने वाले पर्यावरण की सुरक्षा को संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक नहीं मानते। सम्मेलन में भाग ले रहे सभी विशेषज्ञों,
शोधकर्ताओं विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रोफेसर अब्दुल रशीद के पेपर को खूब सराहा। सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अगले दिन हैम्बर्ग से छपने वाले जर्मन भाषा के दैनिक हैम्बर्ग एक्सप्रेस में प्रोफेसर की फोटो के साथ व्याख्यान का सारा छपा था। हैम्बर्ग से फ्रैंकफर्ट और वहां से होते हुए दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट कल सुबह 11 बजे उतरी। हवाई अड्डे पर एग्जिट गेट के बाहर आते ही उसे सारा मिली। ड्राइवर सुहेल ने सूटकेस और बैग डिक्की में रखे। उसने हैम्बर्ग से लाए हुए चॉकलेट सुहेल को उसके बच्चों के लिए दिए और एक क्रिस्टल सेट सारा को थमा दिया। जब वे कार में बैठकर जवाहर नगर की ओर अपने घर जाने लगे तो सारा ने पूछा, कैसा रहा तुम्हारा लेक्चर? ठीक, मतलब बहुत ठीक। ये देखो, अखबार में मेरी फोटो छपी है। उसने हैंडबैग की जिप खोलकर हैम्बर्ग एक्सप्रेस की प्रति निकाली और सारा को दिखाया। ओ वंडरफुल, अब एक हफ्ते के लिए घर पर आराम कर। हाँ, मगर कल जाना होगा। कहाँ? कल एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है जिसमें कुछ आला अफसर, कुछ बिजनेसमैन और बाकी लोग शामिल रहेंगे और तुम्हें एक्सक्यूज के तौर पर बुलाया है। हाँ, मगर तुमने तो बताया ही नहीं। इसकी तारीख बड़ी 3 महीने पहले तय हो चुकी। एक दिन भी चैन नहीं, कुछ तो आराम किया करो। हाँ, कल की मीटिंग के बाद आराम ही आ रहा। रशीद ने एक और लंबा कष्ट खींचा। फुटपाथ के साथ सटी अपनी कार की ओर देखते हुए ड्राइवर सुहेल को बुलाया। उसे तंबाकू का पैकेट तथा लाइटर आदि गाड़ी में रखने को कहा। सुहेल समझ गया कि प्रोफेसर अभी चलने के मूड में नहीं है। वह अपने मालिक की आदतों से वाकिफ था। जानता था कि झील के किनारे कुछ देर बैठने के बाद यहाँ से चलने को कहेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि प्रोफेसर रशीद सारा के साथ यहीं इसी जगह मुंडेर पर बैठे झील को निहार रहा था। वहां से उठने वाली हवाओं का स्पर्श महसूस करता था। सारा का जन्म इसी झील की एक हाउस बोट में हुआ था। कभी कभी मजाक में रशीद उसे झील वाली लड़की कहता था। वह डेलगेट के पास बने टीबी अस्पताल के डॉक्टर जोसेफ की बेटी थी, जिसके देहांत के बाद 3 वर्षीय बच्ची को हाउस बोट के मालिक बरकत अली ने पाला था। डॉक्टर जोसेफ अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद भी बरकत के हाउस बोट में ही रहता था। वहां से पैदल अस्पताल जाता, वहीं हाउस बोट में बैठे बैठे इंग्लैंड खा पीता था, मोटी मोटी किताबें पढ़ता था और बरकत के साथ बैठकर बातें किया। बरकत यूं तो अनपढ़ था, मगर अंग्रेजी बोलता था, जो उसने जोसेफ से सीखी थी। अब जोसेफ भी कश्मीरी बोलता था, जो उसने बरकत अली से सीखी थी। शायद अस्पताल में उसकी लोकप्रियता का ये भी एक कारण था कि वो मरीज उसे कश्मीरी में बात करता था। नुस्खा अंग्रेजी में लिखता था, मगर दवा के असर, उसकी मात्रा आदि के बारे में कश्मीरी में समझाता था। डॉक्टर की मृत्यु के बाद बरकत और उसकी पत्नी समझ न पाए कि लड़की के साथ क्या करें। बहुत दिनों के संघर्ष के बाद लंदन के किसी अनजान पते पर दर्जनों खत लिखने के बाद उन्होंने यही तय किया कि वे उसे उसी हाउस बोट में बड़ा होने देंगे जिसमें कि वो जन्मी थी। झील की बेटी सारा अपने होने वाले पति रशीद के साथ ढल के किनारे किनारे मीलों चलती थी। एक दिन इसी ढल के किनारे बैठे उसने रशीद को अपने माँ बाप की पुरानी फोटो दिखाई। कितनी सुंदर थी उसकी माँ, वह भी अपनी माँ जैसी थी, वैसे ही नाक नक्श। फिर जब इनके बच्चे हुए आसिफ और नसीम, तो उनको भी घुमाने के लिए यहीं लाया गया। अब वे बड़े होकर विदेशों में रह रहे हैं, मगर उनकी सांसों में इस झील की हवाएं बसी हैं। प्रोफेसर रशीद दल को देख रहा था। ड्राइवर प्रतीक्षा में खड़ा था। सूर्य अस्त होने लगा था। चीले ढल के गाल लाल होने लगे। लाल पानी में दूर जाता हुआ एक शिकारा भी मानो लाल हो गया। तभी प्रोफेसर का मोबाइल बजा। हाँ सारा, बोलो। रशीद ने उत्तर दिया। मीटिंग खत्म हुई? हाँ हाँ, शायद वहीं मीटिंग में क्या? हाँ,
मीटिंग में क्या होगा, क्या होना वही जो हमेशा होता है। देखिए मैंने जो कहना था कह दिया, मैं तो वही कहूंगा ना जो सही है। नहीं सारा, मैं गुस्से में नहीं हूँ, नाराज भी नहीं हूँ, मैं तो अच्छी राय ही दूंगा ना। ओके, घर आकर बात करूंगी। हाँ तुम ठीक है, मीटिंग फ्लॉप हुई। यस, मीटिंग वाज अ फ्लॉप। ओके, घर आके बात करूंगा। सुहेल ने देखा कि प्रोफेसर गुस्से में है। गुस्सा तो मीटिंग खत्म होने के वक्त से ही है। वहां क्या हुआ वो कैसे जान सकता था, मगर सोच रहा था इतनी लंबी मीटिंग सुबह 11 बजे से 3 बजे तक, कार में बैठे बैठे वो उठा गई। मगर तभी रशीद ने उसे अपने पास बुलाया। जनाब, देख सुहेल देख, ये दलदल में तब्दील हो रहा है। उसने ड्राइवर को झील के पास उतारने वाली स्टीमर की तरफ ले जाते हुए कहा। नहीं जनाब, दल में पानी तो है। कहाँ है? मैं जब छोटा था तो पानी वहां यहाँ था जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं। फिर पानी 2 सीढ़ी नीचे आया, यहाँ इस जगह। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो पानी उस 4थी सीढ़ी पर गया। और अब जब उसे वो हाथ खींचते हुए नीचे ले गया, और अब देख पानी यहाँ इस पत्थर के कोण को छूता है। कहाँ चला गया पानी? अब पानी यहाँ आ गया है। अगर पानी इसी रफ्तार से नीचे जाता रहा तो यहाँ एक दलदल हो जाएगा। मेरे बच्चे जब यूरोप से लौट कर आएंगे तो क्या सिर्फ कीचड़ और दलदल देखेंगे? मैंने उन्हें इसके किनारों पर घुमाया, हाथ पकड़कर चलाया। वे क्या इस वीरानी को देखेंगे? सुहेल बिना कुछ कहे देखता है। लंबी यात्रा की थकान के बावजूद प्रोफेसर रात को सोया नहीं। सुबह के 3 बजे तक अपने लैपटॉप पर काम करता रहा। उसने अपने 40 वर्षों के अनुभव के आधार पर एक प्रेजेंटेशन तैयार की थी ताकि उच्च अधिकारियों के सामने अपना ज्ञान निपुणता के साथ प्रस्तुत कर सके, उन्हें अपनी बात ठीक से समझा सके। उसने मीटिंग के लिए प्राप्त चिट्ठी पर लिखा हुआ पढ़ा, इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। उसने अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर यही विषय टाइप किया। फिर अपने लैपटॉप को प्रिंटर से जोड़कर इसका निबंधनुमा प्रेजेंटेशन बनाया। उसकी 3 कॉपियां निकाली। जब सारा ने देखा कि वो अभी भी काम कर रहा है तो उसने अपने पति को जबरदस्ती सुलाया, जैसे एक माँ अपने जिद्दी बच्चे को सुलाती है। सारा का ये रूप देखकर प्रोफेसर मुस्कुराया और सो गया। सिरहाने पर सिर रखते ही उसे नींद आ गई। गहरी नींद में न जाने क्या क्या दिखता है। स्वप्न में विचरते रशीद ने बिल्कुल वैसे ही खलिहान देखे जैसे बर्लिन जाते समय। फिर वो बर्फ के एक खुले अंतहीन मैदान पर चलने लगे। उसके पांव बर्फ में धंस जाते, मगर वो अपने पांव निकालता वो आगे बढ़ता, वो चलता गया। न जाने कब तक चलता गया, मगर बर्फ के मैदान की कहीं कोई सीमा नजर नहीं आई। उसे एक अजीब सी ठंड का एहसास होने लगा। कहीं कोई आदमजात नहीं। वह पुकारने लगा, लेकिन उस लंबे चौड़े बर्फीले मैदान में कोई नहीं। वो चाहता था कि कोई उसे गर्मा माँ के गर्भ जैसे। वो अपने हाथ ऊपर उठाए हुए पुकार रहा था, लेकिन श्वेत अंतहीन दिशाहीन संसार में उसकी आवाज गायब थी। वो खुद ही अपनी पुकार नहीं सुन पा रहा था। क्या वो बहरा हो गया था? क्या वो मर गया था? नहीं, शायद नहीं। उसने महसूस किया कि वो बर्फ में धंसता ही जा रहा था। वो कहीं नीचे जा रहा था, बहुत नीचे, न जाने कहाँ। अब न बर्फ था न कोई रोशनी, मौत का सा सन्नाटा और अंधेरा। उसे लगा कि वो कई हजार मीटर नीचे आ गया है, एक ऐसी अंधकार में जगह पर जहाँ आसपास की मिट्टी काली राख जैसी थी, जैसे किसी कारखाने से निकला हुआ ब्लैक डस्ट। न कोई पेड़ न कोई पत्ता। उसे मूर्छा आने लगी। फिर भी वो काली राख, काली जमीन पर चलने लगा। वो हाँफ रहा था। उसे प्यास लगी, मगर कहीं कोई नदी नहीं, न कोई झरना, न कोई जलधारा। उसका गला सूखने लगा। वह प्यास के मारे तड़पने लगा। उसने सारा को पुकारा, सारा, सारा, मुझे एक घूंट पानी को पिला दो।
सारा पानी पानी। सारा नींद से जागी। उसने बेडरूम की छोटी लाइट ऑन की, टेबल पर रखा शीशे का जग उठाया, गिलास में पानी उंडेला और रशीद को अनभूत अवस्था में लौटाते हुए पूछा, क्या कोई बुरा ख्वाब देखा? हाँ, रशीद ने उत्तर दिया। रशीद ने थोड़ा पानी पिया, गिलास वापस सारा को थमा दिया, शांत रहिए प्लीज, और फिर से सोने की कोशिश की। दीवार पर टंगी दीवार घड़ी में 5 बज रहे थे। सारा, मुझे 8 बजे करीब जगा देना, मुझे सरकार को प्रेजेंटेशन पेश करना। हाँ हाँ, सो जाओ, सारा ने प्यार भरे गुस्से में कहा। झील के किनारे खड़े प्रोफेसर रशीद के कानों में अपने ही शब्द अब गूंज रहे थे। मीटिंग फ्लॉप हुई। वो आज की मीटिंग के बारे में सोचने लगा। इकोनॉमिक पॉलिसी, कॉर्पोरेट प्रोग्रेस, विकसित मार्केट इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम, टूरिज्म पोटेंशियल, न जाने क्या क्या कहा गया, मगर असली मुद्दे को तो कोई समझना ही नहीं चाहता। सबसे ज्यादा उसे तो गुस्सा इस बात पर आया कि एक अधिकारी ने जिले ढल के अंदर शॉपिंग मॉल के प्रस्ताव की हिमायत की, जिसे इंडस्ट्रियलिस्ट जरगर ने पेश किया। कैसा प्रस्ताव था? क्या ये लोग इस हद तक जा सकते, अपनी की धरोहर को मिटा सकते? नहीं मिस्टर शरीफ, नहीं, ये नहीं हो सकता है। चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, ये मुमकिन है। बिजनेस ऑप्शंस और कहीं देखे जा सकते हैं, रशीद ने कहा। प्रोफेसर रशीद, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन यहाँ की मार्केट इकोनॉमी को बढ़ावा देने के तरीके हमको ही सुझाने हैं। वह ठीक है, मगर अपने माहौल को भी तो बचाइए। दल की हालत देख रहे हैं, लोगों ने एनक्रोचमेंट कर करके इसको तबाह किया। आप तो देख रहे हैं कि इंटरनेशनल टूरिस्ट अब कश्मीर आने लगे हैं। उनके लिए एक अच्छा शॉपिंग मॉल होगा तो कितना अच्छा रहेगा, और फिर यहाँ की यूथ को रोजगार भी मिलेगा। शॉपिंग मॉल तो कहीं और भी हो सकता है, यहाँ क्यों? इस वक्त जरूरी ये है कि हम डल को बचाएं। जब डल ही सूख जाएगा, उसकी खूबसूरती जाएगी, तो इसे देखने के लिए कौन है? प्रोफेसर रशीद, आपकी प्रेजेंटेशन काफी इंप्रेसिव, मगर जो तरीके आपने सुझाए हैं उन पर अमल करना नामुमकिन। क्यों? अगर आप चोर को चोरी करने के लिए सजा दे सकते हैं, तो एक ऐसे चोर को क्यों नहीं जो आपकी सारी दौलत चुराता है, जिससे कुदरत ने अता किया है, उसको क्यों नहीं सजा दे सकते? देखिए प्रोफेसर, कानून बनाना और उसे लागू करना ये सब इतना आसान नहीं जितना आप समझते हैं। मैं सब समझता हूँ, प्रोफेसर रशीद ने कहा। जब 4 घंटों तक चली मीटिंग में कोई निर्णय ही नहीं लिया जा सका, तो अध्यक्ष ने मीटिंग ये कहकर रद्द कर कि सरकार से एक और नई तारीख ली। सभी आला अधिकारी, उद्योगपति, व्यापारी और विशेषज्ञों की बैठक में सम्मिलित होने के लिए सेक्रेटरी ने धन्यवाद दिया। प्रोफेसर रशीद लंबे गलियारे में अध्यक्ष के साथ दूर तक चलता रहा, ये समझाने के लिए कि अपने शहर और वादी को आने वाली आपदाओं से कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन अध्यक्ष ने फिर वही जवाब दिया, जो भी तय होगा प्रोफेसर, अगली मीटिंग में होगा। रशीद को गुस्सा आया। उसने अध्यक्ष को उसके चाटुकारों के बीच छोड़ते हुए लिफ्ट का रुख किया। लिफ्ट से उतरते उतरते उसने अपने मन में ये पक्का किया कि वह अब इनकी किसी मीटिंग में शामिल नहीं होगा। वो एक अभियान चलाया, स्वयं अकेले। आंधी चलने लगी थी, धूल उड़ रही थी। प्रोफेसर का ड्राइवर सुहेल फुटपाथ के पास खड़ी गाड़ी के शीशे बंद कर रहा था। रशीद अपनी कार की तरफ गया, पिछला दरवाजा खोला, सीट पर रखी अपनी प्रेजेंटेशन की बची हुई प्रतियां उठाई, दरवाजा बंद किया, फुटपाथ के पास रखे कूड़ेदान के पास गया, प्रेजेंटेशन रिपोर्ट को तिनके फाड़ डाला। श्वेत कागज के तिनके टीन के डब्बे में गिरते थे और कुछ हवा में उड़ते हुए दूर चले। डर शांत था, मगर रशीद के मन में तूफान उठ गए थे। वो कार में बैठा, लैपटॉप खोला, अपनी प्रेजेंटेशन रिपोर्ट को सिलेक्ट किया, डिलीट दबाने लगा, मगर फिर कुछ सोचकर रुक गया। कुछ ध्यान आया। हैम्बर्ग विश्वविद्यालय के सभागार में मिली
प्रोफेसर टी विलोना की ईमेल आईडी खोजी। वे जानी मानी पर्यावरण विशेषज्ञ थे और यूरोपियन ग्रीन कैपिटल की हिमायत थी। उन्होंने प्रोफेसर रशीद की पेपर को खूब सराहा था। रशीद ने उन्हीं को ये प्रेजेंटेशन फॉरवर्ड कर दी। साथ में ये भी लिख दिया कि वो एक अभियान चलाने वाला है जिसमें उसे उन जैसे लोगों के सहयोग की जरूरत होगी। फिर रिगार्ड्स प्रोफेसर ए रशीद टाइप करके उसने लैपटॉप बंद कर। ड्राइवर की सीट पर बैठे सुहेल ने जब देखा कि लैपटॉप बंद हो गया तो उसने अपने साहब से पूछा, साहब चले आप? हाँ। आपके दोस्त महबूब का साहब के पास? नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, घर चलो, सारा के पास। सुहेल ने यू टर्न लिया, गाड़ी चल पड़ी। रशीद खिड़की से पीछे छूटता हुआ सीधे घर देखता था। धन्यवाद। जिन्हें बोलना है वो अपने घर चले जाए, हम लोगों को सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरीशंकर रैना जी को। और मैं भी आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जिन लोगों को इतनी अच्छी कहानी भी यदि पसंद नहीं आ रही है इसलिए कि वे लोग इस धरती से पानी को उसी तरह गायब कर देना चाहते हैं जिस तरह से अपनी जिंदगी से उन्होंने संवेदना को गायब करना शुरू कर दिया है, तो फिर आप लोग हॉल के बाहर ही कहीं जा करके किसी पेड़ के नीचे कम से कम बतियाए लगे कि हाँ प्रकृति के साथ है, किसी के कमरे में नहीं है। तो शांति से यदि आप लोग सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती इति सावंत जी को। इति सावंत जी लेखिका होने के अलावा ओडिशा की प्रमुख मासिक पारिवारिक पत्रिका कादम्बरी की संपादक और प्रकाशक है। आप निर्देशक निर्माता हैं, 2 विद्यालयों की अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म की निर्माता, प्रतिष्ठित टेलीविजन धारावाहिकों की भी निर्माता है और सामाजिक कार्यकर्ता है। आपकी लगभग 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं जिन्हें अत्यंत प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार, नीलिमा रानी साहित्य सम्मान सहित अनेक पुरस्कार प्राप्त हैं। श्रीमती इति सावंत जी अपनी कहानी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सम्मानित मंचस्थ व्यक्तित्व एवं मेरे सामने उपस्थित आप व्यक्तित्व सबको मेरा प्रणाम। मैं उड़ीसा से आई हूँ। मैं उड़िया में स्टोरी लिखती हूँ। ये स्टोरी मैं उड़िया में लिखी थी, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करके लाई हूँ। मैं खुद हिंदी में ट्रांसलेशन की हूँ, थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक शायद रहेगा। एंड मैं जो स्टोरी नॉवेल्स जो भी लिखती हूँ मेरा उसमें थोड़ा विजुअलाइजेशन एंड थोड़ा डिस्क्रिप्शन रहता है, लेकिन ये स्टोरी में वो कुछ नहीं है। मैंने सब कुछ एडिट करके लाई हूँ 10 मिनट के हिसाब से। मेरा स्टोरी का नाम है आंचल। रुक जा बेटा रुक जा, ऐसे भागो मत, थोड़ी देर रुक जाओ। चावल का एक निवाला तेरे मुंह में दे दूं, फिर जितना चाहे भागना। दाल चावल का एक निवाला बनाते हुए बेटे को बोल रही थी झुम्पा। नहीं माँ, तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आऊंगा मैं, ऐसे ही भागते हुए दौड़ता रहूंगा। खिलखिलाते हुए सारे आंगन में भाग रहा था 5 साल का बच्चा चिकू। कितनी भागू मैं तेरे पीछे, जितनी भी दौड़ लगाती हूँ कहाँ पकड़ पाती हूँ। इतना भागने से माँ गिर पड़ी तो, अगर माँ के पैर में टूट गए तो फिर तुम्हारे पीछे कौन भागेगी, तुम बोलो। कहाँ ज्यादा भाग लिया, हर रोज मेरे खाने के वक्त कहाँ होते हो तुम। अभी घर में हो इसीलिए खिला देते हो मुझे। थोड़े बहुत अभी खेल पा रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ। भागो भागो माँ भागो, मेरे पीछे भागते हुए पकड़ो मुझे। थोड़ी रुक कर बोला चीकू, फिर भागने लगा। अरे बेटी छोड़ उसे, तुझसे नहीं होगा, बड़ा ही नटखट है। वो जो शरारत कर रहा था अभी कुछ दिन तेरे पास रहकर आज ज्यादा शरारती हो गया है। रोशनी घर से बोली झुम्पा के सासू माँ। कुछ नहीं बोली झुम्पा, सोचने लगी गलत कहाँ बोल रहा है चिकू। पैदा होने से अब तक कहाँ वो रह पाई थी चिकू के पास, कहाँ अपने सीने में लगाकर चिपका के सुलाया, कब और कितनी बार रात को चौंकता हुआ देखी।
देखी होगी उसने चीकू को। क्या उसका बचपन और नटखटपन देखी है उसने? क्या लंबे समय तक प्यार और ममता लुटाई चीकू के ऊपर? इतने सारे सवालों का जवाब कहाँ है उसके पास? बार बार ऐसे ही कितने सारे सवाल उसके सीने को निचोड़ कर रख दिया। कितने व्याकुल हुई वो, पर हालत कहाँ उसके हाथों में है। चीकू को देखते रह गई थी झुम्पा। उम्र भी क्या था जब वो छोड़कर गई थी चीकू को। 3 महीने का बच्चा बिस्तर पर सोते हुए धीमी नजर से हाथ पैर हिला रहा था। कभी अपना हाथ चाट रहा था, कभी कपड़े मुंह पर डाल देता था, और वो अपनी चंचल हाथों से एक छोटा सा बक्सा में अपनी सामान भर रही थी। समय कहाँ ठहरता है, वो चलता रहता है अपनी हिसाब से। उस दिन घुटनों के बल चल रहा था चीकू, फिर देखते ही देखते चल पड़ा। दिनों दिन कितना बड़ा हो गया वो, स्कूल जाने लगा है। पर कहाँ वो देख पाई उसका घुटने के बल चलना, करवट लेना, धीरे धीरे जमीन पर पैर रखकर दीवार पकड़कर चलना, चलते चलते गिर पड़ना, कुछ समय आंख मचड़ कर रोने के बाद फिर दीवार पकड़कर अपने आप उठना। कहाँ वो सुन पाई उसके तुतला कर बोलना, सिर्फ वही 1-2 बार दिन में फोन पर, बस और नहीं। माँ, चौंकाते हुए आकर हिला दिया चीकू। अरे वाह, मेरा बेटा सही वक्त पर पास आ गया। थोड़ा मुंह दिखाओ तो। चीकू को कस के पकड़कर उसके मुंह में चावल का निवाला निवाला देने की कोशिश कर रही थी छुपा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या लगा मैं चावल का निवाला लेने आया हूँ? मैंने कहा ना, तुम मेरे पीछे भागो। भागते हुए पकड़ोगी तो मैं चावल का निवाला मुंह में लूंगी। मुंह नहीं खोला चीकू। खींचातानी में चावल का निवाला झुम्पा के हाथ से नीचे गिर गया। झुम्पा के हाथ छूटकर ताली बजाते हुए कूद कूद कर आंगन के ओर चला गया चीकू। क्यों इतना नासमझ हो रहा है बेटा? आओ, थोड़े मेरे पास बैठ जाओ। सिर्फ मेरे पास आकर बैठो, अच्छे अच्छे कहानी सुनाऊंगा मैं। बेटे को समझाने की कोशिश कर रही थी झुम्पा। अरे बेटी, तेरी पकड़ में नहीं आएगा वो। तब से बोल रही हूँ मैं, कहाँ तुम्हें ये सारी आदत है? अपने आंचल से हाथ पोंछते हुए आकर पास बैठी झुम्पा के सासू माँ। नहीं दादी, तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। तुम्हारे हाथों से नहीं खाऊंगा मैं। माँ के हाथों से ही आज मैं खाना खाऊंगा। भागते भागते खड़ी होकर फिर एक बार बोलने लगा चीकू। तो आ जाओ, कहाँ मैं मना कर रही हूँ तुझे खिलाने के लिए। तू सिर्फ मेरे पास बैठकर 2-4 निवाला खा ले, उसके बाद हम दोनों खेलेंगे। फिर सोते वक्त ढेर सारी राजा रानी की कहानी सुनाऊंगी मैं। आओ बेटा, आ जाओ। क्यों उसकी बात सुन रही है? पूजा चावल के थाली खुद के और लेते हुए झुम्पा के सासू माँ बोली, चलो हम चलेंगे फूफजी चाची के घर, देखेंगे तुम्हारे झुमरी आई है या नहीं। हर वक्त वो बाहर रहती है, जो काम वो करती है उस काम में आज इधर तो कल उधर जाना होता है। महीने महीने तक रंगमंच में बीतता है, रात रात भर उजागर। बच्चे का पैदा तो किया उसने, पर कहाँ रह पाई उसके साथ वो। कभी वो उसे गोद में लेकर चांद दिखा पाई, ना कभी शरारत करने पर समझा पाई, ना कभी रोते हुए बच्चे को लोरी सुना पाई। सोते वक्त ना कभी एक कहानी सुना पाई, खाने के बाद ना कभी अपने आंचल से उसका मुंह पोंछ पाई, ना कभी किसी बात से डर के उसके आंचल में मुंह छुपाया चिकू ने। कहाँ वो उसके शरारत का छेड़ी, सोच रही थी झुम्पा। ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठ गई? मेरी बात सुनकर बुरा लगा क्या बेटी? ऐसे ही मैंने बोल दिया, सोचा तू तो यहाँ ज्यादा रहती नहीं है, अभी आई तो बहुत दिनों के बाद आई। लगभग 1 साल हो गया तुम घर नहीं आई थी, इसीलिए लड़का ज्यादा शरारती हो रही है तुझे देखकर। नहीं माँ, बिल्कुल भी आपके बातों से नाराज नहीं हूँ मैं। आपको छोड़कर इस दुनिया में और कौन है हम माँ बेटे का जो आपके बातों से नाराज हो जाऊंगी। आपने हम दोनों को जैसे संभाला, ना जाने क्या हो जाता अगर आप ना होते। मेरे बच्चे को कहाँ घर मिलता, थोड़ी नींद के लिए कहाँ मिलता उसे गोद की गर्मी। कौन उसे इतने प्यार से समझाता, अब रोता। कौन उसके आंसू पोंछता अपने आंचल से। नाटक में कितनी बार माँ का किरदार निभाती हूँ मैं। कितने सारे बच्चों को लाड़ प्यार से गोद में लेकर लोरी सुनाई, हाथ फैलाकर चांद दिखा के समझाई उन्हें। रोते हुए कितने बच्चे के आंसू पोंछाए अपने आंचल में, और बच्चों के आंसू पोंछते पोंछते कितने बार अपने आंसू मिलाकर
दर्शकों को समझाई बच्चे के लिए माँ का आंचल क्या होता है। बार बार दर्शकों को रुलाती रही अपने सुंदर अभिनय से और ढेर सारे तारीफ समेटा दर्शकों से। पर क्या कर पाई मैं अपने बच्चे के लिए? कभी वो रोता तो ना मैंने उसका आंसू पोंछ पाई अपने आंचल से, ना कभी उसके पास बैठकर उसके बदन से धूल पोंछ पाई। शरारती होने पर ना उसे समझ पाई, ना उसे गोदी में भरकर उसके साथ चिपकर सो पाई। साड़ी के आंचल को मुंह में दबा लिया झुम्पा ने। आंखों से आंसू बहती जा रही थी। बस कर बेटी, रो मत, बहुत रोगी जीवन भर। और कितना रोएगी तू? तू कहाँ मजे में घूम रही है? थोड़ी पैसा कमाने के लिए घर छोड़कर, बच्चे को छोड़कर कहाँ कहाँ घूमना पड़ रहा है तुझे? कितनी तकलीफ हुआ होगा तुझे, ये क्या मुझे मालूम नहीं बेटी? मंच नाटक नहीं तो टीवी पे नाटक, कहाँ तुम माँ बेटे मिल पाते हो? ऊपर से मेरी बोझ तुम्हारे ऊपर। ऐसे क्यों बोल रही हो माँ जी? भला आप बोझ क्यों होंगे मेरे ऊपर? और नहीं तो क्या, जिस पर बोझ होना था, जिसको मेरी जिम्मेदारी उठाना था, जिस पर भरोसा करके रही थी, वो तो गया अपने रास्ते में। एक बार पीछे मुड़कर देखा क्या, कैसे जिएगी विधवा माँ? एक बार सोचा कैसे शादी करेगी बिन बाप की छोटी बहन? ना सोचा तेरे पेट में बढ़ता हुआ बच्चे के बारे में। किसी लड़की के साथ नाटक किया और उसके साथ चला गया। तू नहीं होती तो हम माँ बेटी का हालत क्या होता बोल? वही नाटक मेरा बेटा कर रहा था और वही नाटक तू भी कर रही है। पर उसने किया क्या, तूने क्या किया? दिन रात, महीने महीने, सालों साल मेहनत करके पैसा कमाई, ननद के शादी करवाई, मेरे बारे में सोची, बच्चे के बारे में सोची, घर चलाई। चुपचाप बैठकर सुन रही थी झुम्पा। अपने सासू माँ के बात कान से होकर अंदर चला जा रहा था, फैल रहा था बदन के कोने कोने तक। हाँ, उसकी जीवन खत्म होने वक्त यह नाटक ही उसे पुनः जीवित किया था। कहाँ कहाँ ढूंढती वो नौकरी, साथ में बच्चा, सास, ननद की जिम्मेदारी। क्या करती वो, कैसे संभालती अपने परिवार? मन ही मन सर झुका के माता रानी को स्मरण कर रही थी झुम्पा। बहुत मेहनत कर लिया तूने, आगे और मेहनत करने पड़े। मैं आगे फिर और मेहनत करनी पड़ेगी तुझे। चीकू अब तक जमीन पर खड़ा नहीं हुआ। साथ साथ में मैं बूढ़ी सास का सेहत का ख्याल, कितना कुछ। पर ये वक्त कैसा आया? ये वक्त क्या कभी बदलेगा? आगे क्या होने वाला है मालूम नहीं पड़ रहा है। पता नहीं क्या होगा। चिंता मत कीजिए माँ जी, ये दिन हमेशा नहीं रहेगा। ईश्वर पर भरोसा रखिए, माता रानी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाहे जितना समय लगे, फिर सब कुछ सही चलेगा। फिर जाना होगा मुझे और जाऊंगी भी मैं। नहीं जाऊंगी तो कहाँ चलेगा? है कौन हमारे आगे पीछे? हाँ, सोचने पर थोड़ी खुशी भी लगती है। ना ये कोरोना महामारी आती, ना ऐसे सब कुछ बर्बाद होती, जिसे लिए सालों बाद घर में रहने का अवसर मिला मुझे। मेरे जैसे और कितने को भी कहाँ समय मिलता था बच्चों के साथ रहने के लिए। अच्छे बुरे कुछ भी हो, घर में रहने का थोड़ा वक्त मिला। बच्चे के साथ आसपास रहकर उसके सारी शरारतें झेलूं मैं। जैसे भी हो, कल फिर जाना पड़ेगा मुझे। आंखों से आंसू पोंछती हुई बोली झुम्पा। माँ आ झुम्पा के पास आकर मुंह खोल के दिखाया चीकू। मेरा प्यारा बेटा, सोना बेटा। चीकू के गोद में लेकर लाड़ करती हुई उसके मुंह में चावल के निवाला दे दिया झुम्पा। माँ, मेरी भागते से तुमने रोई? और नहीं भागूंगी, तुम्हें नहीं रुलाऊंगा। उसके नन्हे हाथों से आंसू पोंछते हुए बोला चीकू। नहीं बेटा, मैं क्यों रोऊंगी? तू मेरे गोद में होता तो मैं सिर्फ हंसूंगी। चीकू को और ज्यादा प्यार से जकड़ कर बोली झुम्पा, अपने आंचल से मुंह खोल दे उसका। क्रिंग 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 फोन बजने लगा। घूम कर देखा, झुम्पा ने फोन को पास खींच लाई। हेलो हेलो झुम्पा, तुम ठीक हो ना? मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ। जी सर, नमस्ते नमस्ते। क्या कर रही थी झुम्पा? कुछ नहीं, ऐसे ही बेटे के साथ थोड़ा। अच्छा है अच्छा है, बेटे को लाड़ कर लो, आगे फिर समय नहीं मिलेगा। हाँ झुम्पा, सुनो, एक बड़ी खुशी खबर है। तो झुम्पा, क्या है सर? कोरोना पर 4 बढ़िया प्लॉट मिला है। कहानी लिखना शुरू करवा दिया है मैंने। बेटे के साथ खेल कूद कर कुछ और दिन बिता दो। लॉकडाउन खुलते ही हमें पहले रंगमंच पर उतरना है। तैयार रहना झुम्पा। कट गया फोन। अपने हाथों में रखा फोन को देखती रह गई झुम्पा।
फिर कस के जकड़ लिया चीकू को अपने आंचल में। बहुत बहुत धन्यवाद इति सामंत जी को। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीवेमपल्ली गंगाधर जी को। आप तेलुगु लेखक हैं, आपकी विभिन्न विधाओं में 10 पुस्तकें प्रकाशित हैं और आपको साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार सम्मानों से अलंकृत किया गया। श्रीवेमपल्ली गंगाधर। सभाय नमः। Namaskar. Thank you very much for giving this opportunity. Special thanks to Sahiత్య Academy. Story concept है elephants versus farmers. Elephants attack the village farmers. I read you story in my mother tongue Telugu. ఏనుగులు వస్తున్నాయి. ఎగువ కొండకు దిగడాల వేసిన చెరుకు తోటకు ఒక 10 రోజులు అవుతుంది ఉపన్న. ఆఖరిసారి పోయినప్పుడు తోటకు నీళ్లు పెట్టి నిమ్మలంగా మర్రి చెట్టు కింద పడుకున్నాక నడిరాత్రి పూట దెయ్యాలలాగా మీద పడి గెడలను పీక్కుని ఏనుగుల గుంపును చూసినాడు. గుండె ఆగిపోయింది ఒకటే తక్కువ. అంతవరకు వాళ్ళు వీళ్ళు అంటాండి వినడమే కానీ ఏనుగులు నిజంగా చూసింది లేదు. ఓయమ్మ అవేం ఏనుగులు నల్లగా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క కొండలాగా ఉన్నాయి. దానిల దాటికి పెద్ద పెద్ద మానులు కూడా కూలిపోతా ఉంటాయి. ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని ఆ నుంచి పట్టా లేస్తా వచ్చి రెడ్డోరి సత్రం కాడ కూడబడినాడు. ఆడ పడుకొని నిద్రపోతే వాళ్ళందరినీ లేపి సంగతి చెప్పినాడు. ఎవరికి ధైర్యం ఉండాలి? అందరూ ఆవలించి పిక్కమొహాలు వేసినారు. ఏనుగులతో పెద్ద సావొచ్చిపోయింది. ఆ ఫారెస్ట్ వాళ్ళకు చెబితే మన మాటలు వినిపించుకోరు. ఏనుగులు తోటలన్నీ మేసి కడుపు నింపుకొని పోతా ఉన్నాయి. ఏం చేసేది? దిగులు పడిపోయి అదో శేషాచలం కోనకాడు ఉండే నీళ్ల కుంటగాడికి నీళ్లు తాగనొస్తాయి. ఇక ఆ నుంచి ఎగవకపోయి మన తోటల మీద పడతా ఉన్నాయి చెప్పినాడు స్తంభానికి ఆనుకుంటే జిగిరయ్య. ఆ ఏనుగుల గుంపు 2 మందలు ఉన్నాయి. ఒకటేమో ఎగువపల్లె దిక్కు, మరొకటేమో దిగువపల్లె వైపు పోయాయి. మొన్ననే కదా కోడూరు కాడ అరటి తోటల మీద పడి గెలలన్నీ తినిపోయింది. తూర్పు తిమ్మారెడ్డి తోటంతా ఎట్టా పెరిగి తొక్కిపోయినాడో చెప్పినాడు పెద్దన్న. అది కాదులేరా, గుంజనేరు కాడ ఉన్నాయి కానీ అట్టే కదా నీళ్లు బాగుండేది, అక్కడే కదా నీళ్లు బాగుండేది. ఇప్పటి నుంచి కాదు కానీ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పాలించే కాలం నుంచి ఏనుగులు ఆ ఏరుకాడనే ఉంటా ఉన్నాయని మా తాత కూడా చెప్తా ఉండేవాడు. నా చిన్నప్పుడు మనం ఉంటాండే ఈ జాగా అంతా ఏనుగుల నడిరాత్రి గట్టిగా కేకలు వేసుకుంటూ కసపెట్ట పరిగెత్తు ఊళ్ళే కూర్చున్నాడు. చెరుకు తోట కాడ కాపలా ఉండే జిగరయ్య ఏనుగులు వస్తా ఉన్నాయని అచ్చుకుంటాడు. ఊరి జనమంతా నిద్రలేసి ఏనుగుల్ని ఎదిరించి బెదిరించి తరిమేందుకు పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు చేస్తా ఉన్నారు. పటాకులు పేలుస్తా ఉన్నారు. ఏనుగుల కోసం వెతుకుతా ఉండే ఆఫీసర్లు మాబట్టి వాళ్ళు జాడే కనబడటం లేదు. ऑडिटोरियम धन्यवाद गंगाधर जी को। और गंगाधर जी संयोग से हम लोगों के निवेदन के बावजूद हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद लेकर के नहीं आ पाए थे, लेकिन उन्होंने हमें तेलुगु भाषा का की जो है जो संगीत है उसका एक आभास दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं शुरू में मैंने घोषणा की थी कि ममता जी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं और संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो नहीं आ पाई।
तो औपचारिक रूप से तो हमने किसी को अध्यक्षता के लिए आमंत्रित नहीं किया, लेकिन कार्यक्रम के अंत में अनुरोध करूंगा हमारे वरिष्ठ लेखक श्री राम कुमार मुखोपाध्याय जी से कि वे अपनी टिप्पणी से हमें अवगत करें। श्री राम कुमार मुखोपाध्याय। Thank you. This National Festival of Literature organized by Sahitya Academy is actually the Kumbh Mela of literature. Uh, the writers come from different parts of the country. Here in this session itself, Gauri Shankar, actually he is coming from Kashmir, and in his short story, we get a beautiful description of Kashmir, particularly Srinagar, and the whole ecosystem. Because the life is rapidly changing, the urbanization is going on. At the same time, we must save our own trees, we must save our lakes, we must save our ponds, everything. Because if you destroy the ecosystem, then the whole country will be lost. This is the thing, what I got from his story. And Gauri Shankar has translated his own story into Hindi. This is also a very rare kind of thing. It happens in India only. Anuradha Shankar Rai started writing in Odia and then later shifted to Bengali. And Ram Shankar Rai, who was a Bengali, later shifted to Odia. Premchand initially started writing in Urdu, later he shifted to Hindi. It happens in our country. So there are so many bilingual writers also, writing in one's mother tongue, at the same time writing in Hindi. This happens in India only. That we can, because when I read so many books published by foreign publishers on translation, then I am very much confused that the translation is a very difficult thing. You will have to think of the source language, then you will have to think of the target language. But in India, we see that one starts in one language and then shifts to another language. It's very interesting situation in our country. And there I find the picture of Sarojini Naidu. She is a Bengali lady, married to a Telugu person, and then writing in Hindi. This happened in our life in India. This happened. And then Subha Sharma, she read a beautiful short story. She belongs to Lucknow, writes in English, mother tongue Hindi, and the subject is collected from Krishna. Because she was describing, goddess, God Jagannath in her story. It was also very interesting. And then Akhil Pratap writes in Hindi for some years in Kolkata and the Paradise Cinema Hall. You see mentioned. I also enjoyed a number of films there. So we are not sharing the same language, but we share almost the same films in the same cinema. This is also a very unique kind of thing. And Iti Samanto, I know her for so many years. She creates a very beautiful Korea charter, very beautiful. And she organizes so many beautiful literary festivals. And I think last winter in Baroda, there was a literary festival. I was organized by Baroda University, and she was there. And eventually Ganga is known for a very young Telugu writer. With much support, with much energy, is usually known by this name. He was also president of Sahitya Academy in the 70s. Srinidhi Kumar Chattopadhyay wrote a beautiful book in the 1950s. And that book was actually the book was
published first in Italic, it was translated into Italian, then it was published in English. Because at that, because Sundipal Chakravarti, when he wrote the book, actually he was doing his PhD in Oxford, and he published the book Origin and Development of Bengali Language, and that was written in English. And then he wrote the history of Indian literature. That is very interesting because in the 50s, someone died because only in 1954 Science Academy was established. The first proposal was taken by Asiatic Society in 1944, and nothing fruitful happened. They proposed that there should be something like Indian literature, and there should be an institution which should look after this. But the actual book was written in the 1950s, and it was first translated into Italian. And there, there he has written that many Sanskrit texts were first translated into Telugu than other Indian languages. So those Sanskrit books were first translated into Dravidian language and then into many Indian languages. This is also very unique. So there is no North-South conflict. There is a very good relation, and it happened in the 10th century, 11th century. And the same Bhakti movement, it brought in North India, in Vrindavan, in Mathura, and also in South India. This Bhakti movement pervaded the whole India. And a very interesting thing, we know there are so many languages: Assamese, Bengali, Manipuri, Hindi, Kannada, Telugu, and there was one new language was also created in the 12th century. The name of the language was Brojo Bhasha. That particular language was created, and it was followed by southern people, northeast Indian people. This is a Brojo Bhasha. It's a typical kind of language that was created to describe the love between Radha and Krishna. So the subject matter gave birth to a new language, Brojo Bhasha. So this is our India, and in a short story, we developed only in the 1880s. Then in the 1880s, in some languages, in the 1890s, in some languages, it is in the early 20th century. For example, Manipuri. Manipuri society developed in the early 20th century. Some languages, but particularly in case of Bengali, in case of Urdu, in case of Hindi, in some languages, it developed in the 1880s, 1890s. So in the last 130 years, we have developed a very powerful literature, and now we are writing in this particular literary form. We are writing in different languages, but we are all Indian writers. We are first Indian writers, and then we write in English, we write in Hindi, we write in Urdu, in Kashmiri. But basically, we are Indian writers. बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार दापुर। और मित्रों, इसके साथ ही मैं हमारे सभी इस सत्र के प्रतिभागी लेखकों का धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने अकादमी के आमंत्रण को स्वीकार किया और अपनी कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर के हमारे इस मंच पर आए, इस समारोह में शामिल हुए। आप सबसे पुनः अनुरोध होगा कि इस साहित्योत्सव का भरपूर आनंद उठाए, अपने प्रिय लेखकों से मिले। जो लेखक आपके प्रिय नहीं है, जो भाषाएं आप नहीं जानते हैं,
वैसे लेखकों से भी आप मिलने का, संवाद का प्रयास करें। यही इस कार्यक्रम की, समारोह की सफलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सब आमंत्रित हैं। अभी जो हमारे साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में जो चाय पार्टी रखी गई है उसमें, और उसके बाद 5:30 बजे कमानी सभागार में पुरस्कार अर्पण समारोह में शामिल होंगे। नमस्कार। अच्छा लगा। I come to your office and meet you something. I spoke to you over phone one day. तब अब क्या क्या कमी थी? I remember it. That helped me a lot. Yes, concerning those poems.